Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes you to the online lecture series of Computer Networking and Data Communication subject. Today we are going to see topic 1.3, that is types of serial data transmission and its characteristic of Unit 1. The learning outcomes of this video is, after watching this video, you will be able to list types of serial data transmission, classify serial and parallel data transmission, and list transmission characteristics. Course outcomes that will get achieved is course outcome 1, that is, you will be able to maintain wired computer network topologies. Then program outcome PO1, that is, there will be improvement in your basic as well as electronics engineering knowledge. PO4 will get satisfied, means you will be able to perform various experiments using various engineering tools like computer software and hardwares, and you will be able to test the network. Then PO6, that is project management. You will be able to work on small projects. By doing this, your oral and written communication will get improved. You will be able to work in a team or as an individual. Then PO7, whatever knowledge you are gaining here, that knowledge will be with you for lifetime. Then the prerequisite to this topic is you should know the types of data transmission, that is serial and parallel data transmission. In last lecture we have seen types of data transmission, that is data transmission method के दो types है, parallel data transmission and serial data transmission. और serial data transmission is again divided in three types, that is asynchronous, synchronous and isochronous. Now let us see this one by one. What is serial data transmission? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है. अगर हम डेटा को वन बाय वन सीरियल फॉर्म में सेंड करते हैं डेटा बिट्स को, देन इट इज कॉल्ड सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. जैसे कि ये हमको दिख रहा है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है. तो हमारा जो डेटा बिट्स है, तो ये डेटा के बिट्स हमने एक ही सीरियल लाइन पे भेजे हैं और वन बाय वन भेजे हैं. सो ये बहुत ही रिलायबल मेथड है. हम इस मेथड पे ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज डेटा तभी सेंड होगा जब पहला बिट रिसीवर को रिसीव हो रहा है, तभी दूसरा बिट सेंड होने वाला है सेंडर से. सो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी यहाँ पे मेंटेन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. देन लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन कब कब यूज होता है. नाउ वी विल सी फर्स्ट टाइप, that is synchronous serial transmission. So data bits are transmitted as a continuous stream in time with a master clock. अगर master clock का यूज करके within time हम continuously serial pattern में अगर डेटा का स्ट्रीम सेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं synchronous data transmission. The data transmitter and receiver both operate using a synchronized clock frequency. वहाँ पे क्लॉक मेंटेन होता है कि सेंडर को कितना टाइम लग रहा है पर्टिकुलर डेटा बिट सेंड करने में या डेटा का पैकेट सेंड करने में, और रिसीवर उसको कितने टाइम पीरियड में रिसीव कर रहा है. डेटा सिग्नल्स इज accompanied by timing signals. These are called electronic clocks to ensure that the transmitter and the receiver are in step with one another. मीन्स डेटा ट्रांसमिट हुआ है, देन रिसीवर को मिला है, कितने टाइम में सेंड हुआ है और कितने टाइम में मिला है. अगर रिसीवर को डेटा मिला है तो नेक्स्ट डेटा बिट सेंड करना है या नहीं करना है, और कितना गैप रखना है, कितना टाइम इंटरवल रखना है दो पैकेट्स के बीच में. तो ये सब इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक थ्रू मेंटेन करते हैं इन सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन. तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सेंडर सेंड करने वाला है इंफॉर्मेशन,
ये सेकंड पैकेट है और ये थर्ड पैकेट है सपोज। सो ये जो गैप दिख रहा है वो टाइम इंटरवल है। दिस इज फर्स्ट पैकेट, देन सेकंड पैकेट, देन ये थर्ड पैकेट। इस तरह से डेटा सेंड होने वाला है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। सो जिस डायरेक्शन में हमने पैकेट सेंड किए हैं उसी डायरेक्शन में रिसीवर को वो मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज asynchronous serial transmission. Data bits can be sent at any point in time. Stop bits and start bits are used between data bytes to synchronize the transmitter and receiver and to ensure that the data is transmitted correctly. यहाँ पे हम रैंडमली किसी भी टाइम पीरियड में डेटा के पैकेट्स सेंड कर सकते हैं। सो डेटा पैकेट सेंड हुआ है नहीं सेंड हुआ है या हमको टाइम की गैप लेनी है, ये हमको कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए हम स्टॉप बिट्स एंड स्टार्ट बिट्स यूज करने वाले हैं और ये बिट्स यूज करने से रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होने वाला है। सो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये सेंडर है, ये रिसीवर है और इस तरह से हम डेटा के बिट्स सेंड करने वाले हैं। फर्स्ट पैकेट, सेकेंड पैकेट एंड थर्ड पैकेट। सो जो भी दिख रहा है जीरोस पैडिंग आफ्टर द डेटा बिट्स, सो जीरो अगर पैड होता है डेटा बिट्स के लास्ट में, सो इट इज कॉल्ड स्टार्ट बिट। और अगर डेटा बिट्स के लास्ट में या स्टार्टिंग में हमको 1 दिखता है तो दैट इज एंडिंग बिट। सो हम डायग्राम में देख सकते हैं इस पैकेट में ये 0 पैड हुआ है स्टार्टिंग में एंड यहाँ पे ये 0 पैड हुआ है स्टार्टिंग में। सो हम समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट बिट्स है और यहाँ पे 1 है, सो दिस इज एंड बिट। यहाँ पे 1 है, सो दिस इज एंड बिट। मीन्स हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हुआ। ओके, सो बिटवीन द स्टार्ट बिट्स एंड एंड बिट आवर डेटा लाइज। सो इस तरीके से हम asynchronous serial transmission करने वाले हैं। The time between sending and receiving data bits is not constant, so gaps are used to provide time between transmission. So एक पैकेट, सपोज एक पैकेट 5 मिनट्स में अगर रिसीवर तक पहुंच रहा है तो दूसरा पैकेट भी 5 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स में ही पहुंचेगा रिसीवर तक। ये कोई कांस्टेंट टाइम नहीं होता है इन asynchronous serial transmission में। सो ये जो टाइमिंग है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिट्स दैट में वेरी। तो यहाँ पे देखिए ये इस पैकेट और इस पैकेट के बीच में इतना सारा टाइम इंटरवल, इतना सारा गैप है, बट इन दोनों पैकेट्स के बीच में ये छोटा सा गैप है। सो जो टाइम गैप है, इंटरवल गैप है, वो पैकेट्स के बीच में सेम नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड asynchronous data transmission. Then isochronous data transmission. Isochronous transmission is a combination of synchronous and asynchronous transmission, but data stream can be transferred at random time intervals. Each transmission begins with a start packet. अगर हम isochronous की बात करते हैं, so it combines the features of both synchronous as well as asynchronous data transmission. तो synchronous data transmission में ऐसा था कि टाइम इंटरवल का जो गैप था वो कांस्टेंट रहता था, बट asynchronous में वही गैप कांस्टेंट नहीं रहता था। सो ये भी वैसे ही यूज करेगा, कुछ पैकेट्स सेंड करेगा विथ सम कांस्टेंट टाइम इंटरवल और कुछ पैकेट सेंड करेगा वेरिएबल टाइम इंटरवल में। मीन्स रैंडमली कोई भी पैकेट किसी भी टाइम इंटरवल पे हम सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने asynchronous में देखा था, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट या स्टार्टिंग बिट और एंड बिट जो हम डिफाइन करते हैं एट स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द पैकेट, तो वैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट और एंड बिट्स यूज करेंगे। सो डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ दिस इज अ स्टार्ट पैकेट, साइकिल स्टार्ट पैकेट मीन्स यहाँ से हमारा पैकेट स्टार्ट हुआ है, ये भी यहाँ से हमारा पैकेट स्टार्ट हुआ है। तो दोनों के बीच में 125 माइक्रोसेकंड है ना, कांस्टेंट टाइम पीरियड है, कांस्टेंट टाइम पीरियड है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर थर्ड कोई पैकेट आता है तो 150 माइक्रोसेकंड का वो टाइम लेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए पहले
डिवाइस 1 का डेटा आया यहाँ पे, बाद में डिवाइस 2 का डेटा आया, यहाँ पे पहले डिवाइस 1 का डेटा आया, बाद में डिवाइस 2 का। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर जो है पैकेट्स का वो फिक्स नहीं है, रैंडमली हम पैकेट्स सेंड करते जा रहे हैं, इसीलिए इसको आइसोक्रोनस बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के फीचर्स को कंबाइन करता है। Then let us see difference between these two. So these are the parameters on the basis of which we are going to differentiate. First transmission characteristic is transmission description. So serial में bytes transmitted in linear fashion means one by one हम bits को send करेंगे, लेकिन simultaneously parallelly हम यहाँ पे bytes को send करेंगे। Serial transmission slower है, parallel transmission faster है। सीरियल ट्रांसमिशन हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और पैरेलल ट्रांसमिशन हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन इसका बिटवीन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर टू एन एक्सटर्नल मॉडेम, कंप्यूटर टू अ स्लो प्रिंटर। मींस फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहे जिन दोनों डिवाइसेस की, उन डिवाइसेस को अगर हमको ट्रांसमिट करना है और कम्युनिकेशन करवाना है तो हम सीरियल मोड यूज करेंगे। विद इन अ कंप्यूटर्स बस पैरेलल में, फ्रॉम कंप्यूटर टू पैरेलल हाई स्पीड प्रिंटर। मींस शॉर्ट एंड टाइम पीरियड में अगर फास्टर डेटा ट्रांसमिट करना है तो हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यूज करेंगे। केबल डिस्क्रिप्शन, कौन से केबल यूज होने वाले हैं? सो ऑल बिट्स ट्रैवल डाउन अ सिंगल वायर 1 बिट एट ए टाइम। सिर्फ हमको एक ही वायर लगने वाला है, उसी के ऊपर हमारे सब बिट्स ट्रांसफर होने वाले हैं। देन each bit travels down its own wire simultaneously with other bits। हमको बहुत सारे वायर्स लगने वाले हैं और एक वायर एक बिट ट्रांसमिट करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। देन ट्रांसमिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिग्नलिंग रेट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टेट चेंजेस पर यूनिट टाइम। सो हमारा जो हमारे सिग्नल की स्टेट कैसे चेंज होती है उसको बोलते हैं सिग्नलिंग रेट। डेटा रेट, नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट ट्रांसमिटेड पर यूनिट। एक यूनिट में, एक सेकेंड में कितने डेटा एलिमेंट्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको बोलते हैं डेटा रेट। बीट रेट, बीट रेट इज द ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ बिट्स हम एक सेकेंड में सेंड कर सकते हैं, दैट इज बीट रेट। देन बॉड रेट। So baud rate is the number of signal units per second। कितने सिग्नल्स हम एक सेकेंड में सेंड कर सकते हैं, that is called baud rate and it can be defined as per second travel number of bits। number of bits सिग्नल है, सिग्नल में कितने नंबर ऑफ बिट्स है वो अगर हमको डिफाइन करना है, so we will use baud rate। So these are the 4 transmission characteristics। first is signaling rate, data rate, beat rate and baud rate। So dear students, let us summarize today's lecture। Today we have covered the topic types of serial data transmission। So there are 3 types: synchronous, asynchronous and isochronous। Then we have seen what is difference between serial and parallel data transmission, and we have covered 4 characteristics of data transmission। Those 4 characteristics are signaling rate, data rate, bit rate and baud rate। So मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ नहीं समझ में आया so watch the videos frequently and you are free to mail me your queries on the following email ID। Thank you so much। Keep learning, enjoy learning।